ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਜੂਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਬੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਜੂਨੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਜੀਵ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋਤ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵਧਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੂੰਕਿ ਨੰਦ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਰਕਵਾਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 184 ਜੀ ਜੋਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਤ ਨੰਦ ਬਹੁ ਠਾਕੋ ਰੇ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਕੋ ਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਆਪ ਉਹ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ
तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। कहते ने जिस नंद का पुत्र भगवान है वो नंद की दा पुत्र है। फिर अगे उसका पुत्र लभना पेगा, उसका प्यो लभना पेगा, लंबा सिलसिला चलेगा। तो किथे जाके ये फैसला करोगे कि परमात्मा की गल है? फिर तो मनुख की गल रहेगी। इस करके वो कहते हैं कि असल परमात्मा की है। कहते ने संकट नहीं परै, जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जाको रे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जाके माई ना बापो रे। कहते ने ना उसकी कोई मां है ना उसका कोई पिता है। वो वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा है वो जम्मण मरण दे चक्कर तो रहत है, क्योंकि जन्म वास्ते माता पिता चाहिए ने, जन्म वास्ते कोई साधन चाहिए है। ते जिथों कोई चीज जन्म लेंदी है, जिथों किसी चीज की पैदाइश होंदी है, वो चीज वड्डी है कि पैदा होने वाली चीज वड्डी है। इस तर्क उत्ते आण के सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि परमात्मा नू कोई पैदा नहीं करता, परमात्मा नू कोई बनाउंदा नहीं। एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ है लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी मनाਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ जन्म दिन मनाਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ इस तरह ਕਰਦੇ ਆ भी एक कचरा लैके, खरबूजा लैके ਜਾਂ कोई इस तरह का फल लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ छोटी जी मूर्ति पाਉਂਦੇ आ, फिर उस समय उत्ते ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ मूर्ति ਕੱਢਦੇ। ऐसा भी करते हैं लोग, कई तरीकों नाल करते हैं। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ने भी अज दे दिन भगवान ने जन्म लिया, यानी कि भगवान की भी रब की भी डेट ऑफ बर्थ निश्चित है कि इस वक्त उसने जन्म लिया। तो यह मतलब है कि वक्त भी भगवान तो पहले सी, ख्याल रखना। ते जन्म लैन वाली सृष्टि भी पहलों सी, फिर तो सृष्टि ही रब है, तो टाइम ही रब है। बाकी सारिया चीज़ां जिहड़ियां उस तो पहले सी वो वड्डियां ने। इसका मतलब है कि परमात्मा बाद विच किते पैदा होया, बनाया गया। लेकिन ये गल सिद्धांतिक तौर पर पूरी नहीं उतरती। इस करके गुरु साहब कहते हैं सगली थीत पास डार राखी। कहते हैं सारिया थितां जिहड़ियां ने वो बाकी दियां कट दित्तियां, एकम दूज तीज, क्योंकि 15 थितां मन्नियां ने वधी दियां सूदी दियां। पुराना कैलेंडर का हिसाब है, इहदे च कोई सिख धर्म इस गल उत्ते खड़ा नहीं भी ये कोई बड़ियां पवित्र चीज़ां ने। ये समय नूं गिणती, समय की गिणती रखण वास्ते, दिनां दा हिसाब किताब रखण लई एक कैलेंडर सिस्टम है पुराना, और गुरमत ने सिर्फ उस कैलेंडर सिस्टम नूं वरतिया। पर असीं भुलेखे च पै गए हैं। असीं इस करके पंचमी, एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, मसिया इहदे च उलझ गए। असीं समझिया गुरु साहब ने खरे इन्हां दी महानता उस तरह मन्नी है जिस तरह ज्योतिष शास्त्र वाले दूजे मनते हैं। नहीं, सिर्फ कैलेंडर का प्रयोग होया। जिस तरह हुण अज मैं कहना कि सारी दुनिया ईसाई बन गई है, क्योंकि सारे ही जिहड़े ने जिहड़ा ईसाई कैलेंडर वरतदे आ। हुण जे असीं जनवरी फरवरी या तरीकां इन्हां दीयां वरतदे आ तां असीं ईसाई तां नहीं हो गए। ये तां समय नूं मिणन दा एक साधन है। मुसलमान जिहड़े ने अपने ढंग नाल वरतदे आ, दूजे अपने ढंग नाल वरतदे ने। हिंदुस्तान विच ही 3-4 किस्म के कैलेंडर चलदे आ और वख-वख मत मतांतरां नाल उन्हां दा संबंध है। इसका मतलब कोई पूजा नहीं। जिहड़े लोग उहनूं प्रयोग विच लिआउंदे ने वो कोई ये नहीं भी उन्हां दे इष्ट नूं मन्नण लग पए ने जां उसदी पूजा दे ढंग नूं मन्नण लग पए ने। उस वेले ये विक्रमी कैलेंडर चालू सी जदों गुरु साहब ने संसार दे अंदर प्रवेश कीता, और उही प्रधान सी समाज दे अंदर। दूसरा कैलेंडर सी मुसलमानां दा, ते गुरु साहब ने इस विक्रमी कैलेंडर नूं जिहड़ा आम प्रचलित सी वरतों विच लिआंदा है। ते असीं समझ लिया अजे भी लोकां 'च भुलेखा है कि शायद गुरु साहब भी इन्हां कोई दिनां नूं चंगा माड़ा समझ के ते इन्हां दी गल करदे। हालांकि बाणी विच इन्हां चीज़ां नूं जगह जगह ते कंडेम कीता गया। तो खैर एक वखरा मजमूर है। मैं जिक्र कर रहा सा कि सतगुरु कहते ने सगली थीत पास डार राखी, कि सारियां थितां एक पासे कर दित्तियां। ते कहंदे आ कि अष्टम थीत गोबिंद जन्मासी, कि 8वीं थित नूं परमात्मा पैदा होया, रब जमिया। परम भूले नर करत कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। कहंदे ने भरम विच भुले हुए मनुख जिहड़े ने वो कचरायण करदे ने, ते परमात्मा नूं कहंदे ने भी जम्मिया इहदे चों पैदा होया। परम भूले नर करत कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। सतगुरु कहते हैं कि जन्म ना मरै, आवे ना जाए। इस तो पहले वो जिक्र करते हैं, कहते हैं सकल अपराध देह लोरोनी, क्योंकि फिर उन्होंने भंगूड़े च पा के ना, भंगूड़े च पा के फिर उन्होंने हूटे देंदे आ कि भगवान नूं असीं खिडा रहे हैं। तो जिहड़ा भगवान साडे हत्थां च खेडदा है, भगवान किदां होऊगा? वो तो फिर साडे हत्थ दा खिडौना हो गया ना, वो तो गल ही कुछ नहीं। कहंदे ने कि सगल अपराध देह लोरोनी, सो मुख जलो जित कहें ठाकुर जोनी। कहंदे ने तेरा मुंह सड़ क्यों नहीं जाता, तेरा वो मुंह सड़ क्यों नहीं जाता
जिस मूँह नाल इंसान तू कहना भी रब ने जन्म लिया, हुण भी जे ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हुंदियां होया और साडे मूल मंत्र विच अजूनी दा सिद्धांत कायम हुंदियां होया, जे अज भी कोई सिख गुरु ग्रंथ साहिब दा जिहड़ा उपासक है वो कहंदा भी फलाने बंदे ने फलाना बंदा जिहड़ा उहदे च रब ने जन्म लिया, तां मैं समझदा भी वो सिखी ख्यालों तो बहुत दूर है और ओदी सिखी कल्पना बिल्कुल है ही नहीं। उन्होंने पता ही नहीं कि सिख मत की है। इहो गल्लां रोकण वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ख्याल रखना 10 गुरुआं विच गुरु नानक साहब की जोत वरती है ते गुरु साहिबान ने हमेशा सिखां नूं ये बार बार एहसास दवाया, क्योंकि बंदे की तो आदत सी, जिस समाज में वो आए उत्थे ते आदत सी कि माड़ा जिहा कोई बंदा संत साध बनया नजर आया, कोई रब की गल करने वाला, तो उन्होंने रब रूप भगवान समझ के पूजन लग पे लोकी कई किस्म के भगवान लोगों ने बनाए हुए सी। ते गुरु साहब ने बार बार लोगों को ताड़ना की कि देखो भाई असीं तां रब की गल करने वाले हाँ, परमात्मा ने सानू अपना सुनिया देण लई संसार विच भेजिया, साडी ड्यूटी लाई है, ते असीं रब नहीं हाँ। कोई बंदा थोड़ा जिहा रब की गल करने वाला, परमात्मा की गल करने वाला, थोड़ा जिहा बाणी कीर्तन करने वाला अपनी दुकान खोल के बह जाता, कहता मैं तो रब बन गया। तो कैसा अजीब सिलसिला है कि वो कहते आओ तुहानू निरंकार विखाईए। मैं हसदा कदे कदे कि जिहड़ा है ही निरंकार उहनूं विखाओगे कि किड्डा झूठ है। कहते हो निरंकार विखाईए, तो निरंकार का मतलब है जिहदा आकार कोई नहीं, निरंकार का अर्थ है जिन्होंने वेख्या नहीं जा सकता। और लोग कैसे ने कि कतारां बन बन के मगर तुरे ने भी रब वेखण चले हैं, भी वो कहते ने निरंकार है, तो निरंकार विखाया किवें जा सकता है। पर मनुख जिहड़ा ना ये अज्ञानता दे वस विच है, और सतगुरु सच्चे पातशाह ने इसे वास्ते सिख नूं ज्ञानवान बनने की सिक्ख्या दी है। और इहो कारण सी भी गुरु साहब ने शब्द नूं गुरु कहा, किसी मूर्ति तस्वीर बुत किसी आकार नूं गुरु नहीं आख्या, शब्द नूं गुरु आख्या, क्योंकि शब्द का सीधा संबंध ज्ञान नाल है, ताकि सिख जिहड़े सन वो ज्ञानवान हो जाण। तो सतगुरु कहते ने कि परमात्मा जिहड़ा है वो अजूनी है, वो जम्मण मरण विच नहीं आउंदा, किसी दी कुख तो वो जन्म नहीं लैंदा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने सिख नूं ये गल समझा दी कि भाई परमात्मा नूं किसी इस एक आकार किसी एक स्वरूप के अंदर नहीं ढालिया जा सकता। लोगों ने कहा जगन्नाथ चले गए सतगुरु, जग बड़ी प्रसिद्ध वार्ता है, तो लोग कहने लगे भी ये जिहड़ी मूर्ति है ये जगन्नाथ है, हालांकि वो श्री कृष्ण की उपासना की मूर्ति है। लंबी कहानी है, हाथ है नहीं, उहदे पैर है नहीं, जिवें पिंगला हुंदा है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे आखन लगे भाई ये पत्थर जगत का नाथ किवें हो सकता है, ये किवें जगत का नाथ हो सकता है। जगत का नाथ इन्ना लूला लंगड़ा इन्ना स्थिर इन्ना अचेत किदा हो सकता है। जगत का नाथ जिहड़ा है वो ते भाई सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब में चानण होए। ते बड़ी अजीब गल है कि लोग इस शब्द का आसरा लैके ते आरतियां उतारी जा रहे हैं, हालांकि इस शब्द विच आरती रीत का बिल्कुल खंडर है, विरोध है, लेकिन इसे शब्द नूं लोकी मंडन विच वरत रहे हैं। कारण की है? कारण वही है कि सिख ने इस बाणी नूं समझण वाले पासे ध्यान ही नहीं दिता। जे वो इस बाणी नूं समझण वाले पासे ध्यान देवे तो उसनूं इस गल की समझ पै सकती है कि परमात्मा के संबंध विच मैं इस तरह की चर्चा नहीं कर सकता कि परमात्मा जन्म लैंदा है, उसकी कोई मूर्ति है, उसकी कोई शक्ल सूरत है, वो वाधा घटता है, उसनूं मैं इन्हां अखां नाल सामने रख के मूर्ति बना के देख सकता हाँ। ये सारियां गल्लां सिख दे दिमाग विचों निकल सकदियां ने जे वो ये ध्यान रखे। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा कि परमात्मा अजूनी है। फिर लोगों ने सवाल किया जी परमात्मा फिर आ कित्थों गया? ये याद रखना, अकाल मूर्त करता पुरख ये असल च लफज वखरे वखरे ने, लेकिन इन्हां दे आपस विच भाव जिहड़े ने वो सांझे ने। ये एक लड़ी विच परोतियां हुई चीज़ां ने। इसे तरह जदों ये सवाल खड़ा होएगा कि परमात्मा जे अजूनी है, जन्म नहीं लैंदा, तो फिर आ कित्थों गया? सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने
कि वह वाहिगुरु अपाल अकाल पुरख सैभंग है। सैभंग संस्कृत शब्द सविंग भू, सविंग भू तो है जिहड़ा अपने आप तो प्रकाशमान है। गुरु साहब कहते हैं आसा दी वार भी इसे वास्ते सानू कहा गया रोज पढ़िया करो। असल में जिहड़ियां चीज़ां रोज रोज सुनने लई रोज पढ़न लई सानू दित्तियां गईयां ने उन्हां दे अंदर साडे सिद्धांतां दी स्पष्ट व्याख्या है। नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब कहते भी सारा ही रोज पढ़िया करो तो बड़ी मुश्किल सी, पर उन्होंने सिलेक्ट किया कि आ चैप्टर जिहड़े ने ये तुहाडे नित नेम विच संगति नेम विच ते तुहाडे व्यक्तिगत नेम विच आउणे चाहीदे आ। उंज असीं सारा गुरु ग्रंथ साहब ही पढ़ना है, सारे नूं ही असीं समझण दी कोशिश करनी है, लेकिन जिहड़े मुख भाव ने केंद्री विचार ने जिन्हां दी व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब है वो असां रोज रिपीट करने आ, वो रोज अपने ध्यान विच रखने ने ताकि सानू कदे ये गल विसर ना जाए, असीं अपने सिद्धांतक पहलू तो दूर ना चले जाइए। उत्थे लिखिया है आसा दी वार दी पौड़ी है, आपी ने आप साजियो। उस वाहिगुरु अकाल पुरख ने आप ही ने, आपी ने दा मतलब है आप ही ने, आप साजियो, अपना आप बनाया। परमात्मा ने जिहड़ा अपना आप है वो वाहिगुरु अकाल पुरख ने आप बनाया। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो। नाव, नाव तो मतलब एग्जिस्टेंस, होंद, अपनी होंद उसने आप रची है। फिर दुई कुदरत साजी है, फिर उसने सारी कुदरत का अर्थ है शक्ति, जिन्होंने माया भी लोग कहते हैं। कहते ने फिर उसने ये माया बनाई, ये कुदरत बनाई, ये सृष्टि बनाई। पहलों उन्हें अपना आप प्रकाशमान किया, फिर कई थां ते सवाल आता भी कदों किया, किथे किया, किस रूप विच किया। इहदा गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बड़ियां थावां ते जवाब है। सतगुरु कहते ने प्रश्न ऐसा है कि इहदे संबंध विच सानू सोचण की कोई लोड़ नहीं, क्योंकि ये गल कोई नहीं दस सकता। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। जिसने ये सारी सृष्टि अपनी मर्यादा विच बन्नी है, उहदे संबंध विच असीं नहीं दस सकते कि वाहिगुरु अकाल पुरख कदों बनिया, किस तरह बनिया। और गुरु साहब तो कहते हैं भी इस गल की भी चिंता करने की लोड़ नहीं कि परमात्मा ने सृष्टि कदों बनाई। जपजी सारे सब्जैक्ट अगे चल के आउणगे, क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि साडा काम है उहदी भगती करनी, उहदा नाम जपना, उहदे नाल आपां जोड़न की कोशिश करनी। साडा धर्म सिर्फ इतना है, साडा धर्म ये नहीं कि असीं उहदा जम्मण मरण लभदे रहिए, पता करते रहिए कि वह वाहिगुरु अकाल पुरख कित्थे खत्म हुंदा है। भाई गुरदास साहब ने एक गल कही है। भाई साहब कहते हैं कई लोग परमात्मा का अंत लभण की सोचते हैं, पता करने का यत्न करते भी कित्थों शुरू होया है, कित्थे यह सिलसिला खत्म होवेगा। कई लोगों ने इस पासे अपनी मगज पच्ची करने की कोशिश की है। भाई गुरदास कहते हैं, कहते ने ओड़क भाल ना ओड़क पाया। ओड़क का मतलब है एंड, अंत, किसी का हिसाब किताब लाना भी कित्थों शुरू होता है, कित्थे खत्म होता है। वो कहते हैं कि कई लोगों ने उस परमात्मा का अंत लभण की कोशिश की, या उहदा जम्मण, उहदा मरण, उहदा हिसाब किताब लाने का यत्न किया। कहते ने ओड़क ओड़क भाल ना ओड़क पाया। कहते जिहड़े भालते सी उन्हां दा अंत हो गया, उन्हां नूं अखीर नहीं लभा। ओड़क भालण गए से फिर ना आया। कहते ने जिहड़ा उहदा अंत लभण गए ना, वो मुड़ के वापस नहीं आए। एक विचारवान ने इस गल नूं सरल करदिया होया एक मिसाल दी है। असीं सारे जानते समुद्र विचों लूण पैदा हुंदा है। वो कहते ने भी समुद्र चों पैदा हुए लूण का एक पुतला, बुत आकार, उन्हें सोचा कि मैं इस समुद्र की गहराई ते लभा, इस समुद्र की डूंघाई लभा जिथों मैं पैदा होया, यदि मैं डूंघाई ते वेखा भी किन्नी है। कहते ने वो लूण का जिहड़ा पुतला है वो समुद्र की डूंघाई लभण वास्ते विच उतरिया, तो नतीजा की होया भी आप ही खुर गया, आप ही खत्म हो गया। वो कहते इसे तरह असीं उस अथाह शक्ति विचों एक किणका मात्र हाँ, जदों असीं इस भाल विच तुरांगे असीं खत्म हो जावांगे। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने इहो जे दृष्टांत, इहो जिहियां मिसालां दे के ते सिख नूं इह गल कही है कि तूं वाहिगुरु अकाल पुरख दी एक हस्ती नूं मन के ते ओदी भगती वाला मार्ग अख्तियार करना है। तू वाहिगुरु नूं अपने हथ दा खिडौना नहीं समझना, ते यह नहीं समझना कि वह किसी गर्भ विचों पैदा हुंदा है, कोई मां उहनूं जन्म दिंदी है। लोकां ने तो ऐसा किया,
भी मछली का भी अवतार बनाया, सूर का अवतार बना दिता, मच्छ कच्छ हो बराह कई किस्म के 24 अवतार मिल ले तो क्या भी ये भी रब का अवतार है, आ भी रब का अवतार है, आ भी रब का अवतार है। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि वो जिहड़ा परमात्मा है वो तो भाई अजोनी है, वो किसी दे गर्भ विचों जन्म नहीं लैंदा। संसार दे अंदर परमात्मा की होंद शक्ति करके सत्ता करके फैली हुई है, किसी आकार करके नहीं फैली हुई। इस करके ये आकार खत्म भी हो जाएगा तो भी परमात्मा रहेगा। जदों ये आकार नहीं सी तदों भी परमात्मा सी, ते जदों ये नहीं रहेगा उदों भी परमात्मा होएगा। परमात्मा ने ये सृष्टि, ये आकार, ये रचना कई बारी बनाई है, कई बारी ढा दी है और कई बारी बनाएगा, कई बारी ढा देगा। ये उसकी सृष्टि का चक्कर जिहड़ा है ये उसकी मर्जी नाल जदों दा चित चाहुंदा चला दिंदा, जदों दा चित चाहुंदा वो इनू खत्म कर दिंदा है। ते जे असीं इस चिंता विच रहीए, क्योंकि आम तौर पर मनुख सवाल करता है, कहंदा तू रब देखिया, जिहड़ा कोई रब दीयां गल्लां करे ते सवाल कर लैंदे लोकी आण के, तू रब देखिया। उसदा मतलब वो की चाहुंदा है? वो चाहुंदा कि रब दी कोई मूर्त, रब दा कोई खास आकार जिहड़ा है वो मेरी नज़र विच आउणा चाहीदा ते मैनू कोई विखावे। इस मनुख की लालसा का फायदा जिहड़ा है वो उन्हां लोकां ने उठाया जिन्हां लोकां ने रब के संबंध में प्रपंच ते पखंड करके अपनियां दुकानदारियां चलाउणियां सी। क्योंकि मनुख जिहड़ा ना ये दिन रात शरीरां विच वरतदा है, इहदा दिन रात का जिहड़ा वाह है फिजिकल है, हर चीज जिहड़ी ठोस उहनूं देखदा है, सूखम के संबंध में इनू ज्ञान कोई नहीं, इनू तो अपनी आत्मा का एहसास ही कोई नहीं है। इस करके आत्मा की मूल अंश परमात्मा जो है मूल, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ध्यान जा ही नहीं सकता। इस करके ਜਦੋਂ भी किते रब की गल चलती है या गुरु पीर पैगंबर की गल चलती है तो यह फट कोई शरीर लभण की कोशिश करता है, कोई आकार लभण की कोशिश करता है। और गुरु साहब ने वेख्या सी कि समाज के अंदर करोड़ां देवी देवते मूर्तियां वगैरह बना के लोग बैठे ने, कोई पश्चिम नूं नमस्कार कर रहा है, कोई पूर्व नूं नमस्कार कर रहा है, तो मनुख एक वाहिगुरू अकाल पुरख की जिहड़ी गल है उसनूं बिल्कुल भुल ही बैठा है। ये चेते कराउण वास्ते एक तो शुरू करके ते गुरु साहब ने उस व्यापक हस्ती दे संबंध विच मनुख नूं ज्ञान दिता कि भाई आ गल है परमात्मा दी, इस तो बिना जे तू सोचेगा ते तू हनेरे विच होएगा। ताइयों ते असीं कहने भी गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे, गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटह सब तेरे। तो जिन्ना चिर असीं गुरु दे इस ज्ञान नाल अपने आप नूं जोड़न की कोशिश नहीं करते, जिस ज्ञान नाल गुरु साहिबान ने अपने हुंदियां, अपने शरीर दे हुंदियां लोकां नूं जोड़िया, शरीर नूं इंपॉर्टेंस नहीं दिती। इस गल का ध्यान रखना, ये गल कह के मैं खिमा दा याचक होवांगा। गुरु नानक तो जन्म तो गुरु सन, लेकिन गुरु अंगद जन्म तो गुरु नहीं हैं। जे शरीर गुरु हुंदा ते गुरु अंगद भी जन्म तो गुरु हुंदे। शरीर तो उन्हां दा बचपन तो सी, लेकिन असीं जिहड़े शब्द गुरु के सिद्धांत नूं समझे नहीं, असीं देह नूं गुरु लभण लग पए। देह माफ करना मैनू, गुरु नानक साहब, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास साहब, गुरु रामदास, ये चारे एक वक्त सन, एक टाइम सी कि चारे ही जींदे सी, चारों की हस्ती मौजूद सी। जे शरीर गुरु हुंदा तो फिर चारे ही गुरु हुंदे, फिर तो चारे गुरु होने चाहिए सी। और अगाह चल के जिस हिस्ट्री पढ़ोगे बड़े परेशान होगे तुसी, 6-6 7-7 गुरु मिलणगे। असीं शरीर की दुनिया विच विचरदे हां ते शरीर नाल मोह रखण करके असीं सारा कुछ शरीरक ही सोचते हैं। इस करके असीं भुलेखे विच पैंदे हां। नहीं तो गुरु साहब ने इस भुलेखे चों कढण लई ही सानू शब्द गुरु दे लड़ लाया, शरीर दे लड़ नहीं लाया। और यह बड़ी हिम्मत का सौदा है, कोई आम बंदा नहीं कर सकता। कोई आम आदमी जिहदी प्रस्तिश ते पूजा हुंदी होवे वो कहे भी मैं मर जाना जे मैनू ना मन्नियो, कोई नहीं कहता। पता होंदा है कि मैं कल नूं मर जाना, फिर भी चरण अगे कीते हुंदे ने। एक मिल गया सी मैनू इदां दा बंदा, मैं कहा संत जी तुसीं बड़े पैर घटाउंदे हो, गल की है, कहानी की है? मैं कहा तुहानूं पता नहीं भी ये गलत गल है? कहना पता है पर आदत पई है, रोटी नहीं हजम हुंदी। मैं कहा तुसीं ज्ञानवान हो, समझ वाले हो, तुहानूं पता है भी इस देवी नहीं चीज़। कहने लगा गल तुहाडी ठीक है, मैं भी मनदा, पर आदत पई है, लोग छड्डदे ही नहीं, खड़े नहीं छड्डदे। कई बारी ऐसा भी चक्कर पैंदा कि बंदा तो तस्लीम कर लेंदा भी ये गल गलत नहीं करना चाहता, पर चेले उन्होंने घेर के रखते भी तेरे नाल तो साडी दुकान चलती है, जाएगा किधर तू? तो मैनूं खिमा करना,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸਹਿਭੰਗ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤਿਆਗ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜੂਨੀ ਤੇ ਸਹਿਭੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।